Hello, very good evening to everyone. On behalf of United Minds by PHF and HSH, we welcome you for the session today, another Power Pack session under guidance of Dr. Liaquat Namole and Dr. Ashoka Avati. A very warm welcome to everyone. Thank you for connecting. So today we have another wonderful speaker with us. She is Dr. Padma Shri Vishwanath Chende from Mohol district, Solapur, and she has her Shende Homeo Clinic in the Mohol. Sorry, Nishi. It is Solapur district, Mohol. Okay, sorry, Solapur district, Mohol. She has completed. She studied from Gandhinatha Homeopathic Medical College at Solapur. She was earlier practicing allopathy, gynec and obstetrics, and now practicing homeopathy with the mind method since last 6 years. She has very good results with renal calculus cases. So let's welcome Dr. Padma with a big round of applause, everyone. Let's hear it for Dr. Padma. Over to you, Dr. Padma. Actually, Dr. Padma, friends to all, I am telling something important, not very important, but since she is a family member of mine, and Padma is my baby sister, you know? And Dr. Padma is known as a kidney specialist in Mohol and around. Okay. Okay, beta. Padma, start karo. Good evening, everyone. आवाज Hello. Welcome. येतो छान येतो आणि तू पण छान दिसते. हो, थँक यू. सर कुठे आहेत? सर नाहीत का? सर नाही, सर कोल्हापूरला गेले. First of all, I would like to say a few words about Liaquat sir. मैं जब स्टार्ट में होम्योपैथी करने का दिन विचार आया, तो यहाँ सोलापुर में ऐसा कोई नहीं था जो होम्योपैथी अच्छी तरीके से सिखा सके, और जो क्लासिकल टीचर्स थे उन सब के रिजल्ट्स और उनका सबका प्रैक्टिस देख के बीच में एलोपैथी छोड़ के शिफ्ट होना ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हर एक पेशेंट को आधा घंटा से 1 घंटा लगता है और दिन भर में ज्यादातर 10 पेशेंट देख सकते हैं। जब लियाकत सर यहाँ पे सेमिनार लेने आए थे ना, तो हमने वहाँ पे उनके इतने क्विक रिजल्ट्स देखे और विदिन 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स सर विल टेक टू केस। तो सबसे पहले मुझे ये बात बहुत पसंद आई सर की, इसके लिए मैं सर को फॉलो कर दूंगी, क्योंकि पेशेंट को ओपन अप करना विदिन 10 मिनट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी, क्योंकि हम एलोपैथी में इतना ही देखते हैं कि क्या होता है सिम्टम्स, उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन देके भेज देते थे। When we came in contact with Liaquat sir, it is so easy now. We are feeling very happy that we are with Liaquat sir and following his method. मैंने तो होम्योपैथी पहले के क्लासिकल भी नहीं किया था और दूसरा कौन सा मेथड है मुझे मालूम नहीं था, जो सीखा है वो माइंड मेथड ही सीखा है और Liaquat sir. So I am very grateful to him. काय कोणत्याची दिनशा Hello. Requesting everyone to please keep yourselves on mute. Mute करून टाक. Yes sir. पद्मा तो अनम्यूट करा, मैं म्यूट करते सगळ्यांना. हेलो. तो फिर से एक बार वेरी मच थैंक यू और ग्रेटिट्यूड टू Liaquat sir. And we are starting with gratitude. Priya, slide. Hello. You can share your screen.
First one. Hello. With gratitude to Dr. Hahnemann, we are going to start the today's session. And as Sir said, it is my coincidence or luck that I have already many patients of renal calculus. तो renal calculus बोले तो एक सर्जिकल केस और सर्जिकल एंटिटी जिसमें बहुत सारा पेन होता है, ये सभी ऐसे बोलते हैं. And it is very interesting to treat such a cases. So today we are going to see the two cases of renal calculus. Here are the symptoms that we get in renal calculus patient. They are very common: fever, stomachache, vomiting, hematuria, abdominal pain, bleeding. Next, coming towards the metaphysics of the kidney stones. If we go through the metaphysics, it is very easier to get the concern of the patient and prescribe quickly. To save our time, it is important to go through the metaphysics. Kidneys are the inner steering of the emotional life. The kidneys are the seat of secret thoughts of the human being. The main cause that causes this renal calculus are the stress or emotional upsets or conflicts with the territory, and most important is the suppressed anger. ज्यादातर केसेस में तो सप्रेस एंगर बहुत कॉमनली मिल जाता है, जो पेशेंट बोल नहीं पाता है, मींस ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द इमोशंस और एक्सप्रेस द इमोशंस, और जो दबा के रखता है इसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं. नेक्स्ट, सो वी आर गोइंग टू द जर्नी ऑफ टीयर्स टू स्माइल, फ्रॉम टीयर्स टू स्माइल. हियर इज द फर्स्ट केस. It is a case of 28 years lady complaining of backache, burning, menstruation, and the USG report shows that there is a hydrourethral due to calculus of 50. हाँ सर. माइक जवळ घे बेटा, माइक जवळ घे, तुझा आवाज बाकीच्यांना कमी येत आहे. ठीक. पद्मा मॅडम, तुम्ही ब्लूटूथ लावल्यामुळे कदाचित आवाज कमी येतोय. काढू का? माईक जवळ घेऊन बघा आधी. आता येतोय? हो, आता येतोय. हो, आता आता क्लिअर येतो. व्यवस्थित. ब्लूटूथ लावून चांगला येतो बेटा. हा. डायरेक्ट चांगला येतो. चालेल सर. First case is the case of a lady, 28 years, complaining of backache, burning, menstruation, and the USG report shows there is a calculus of 15 millimeter in the right hydrourethral. And the observation during the case taking is that the patient is touching her nose again and again during the whole case taking, which is common that I have considered. Now the conversation. I am going to share the conversation in Hindi because the feeling that we get the conversation is not able to share through the through English, or we can't get the feeling. So I have to get it in Hindi. नाही तर ते पण आलं होतं, तेच आलं होतं ते कॉल व्यू. मैंने बोला मुझे कमर दर्द है और शामिल होती है और खून निकलता है. पद्मा म्यूट झालंय. हेलो. म्यूट झालंय. हा, आता आला. नहीं, आता अनम्यूट है. आवाज क्लिअर नाहीये. हा, आवाज क्लिअर नाहीये तुझा. क्लियर है नहीं? ब्रेक हो रहा है, ब्रेक आवाज बीच बीच. नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम उनका. हेलो, अभी आ रहा है?
हॅलो, आ रहा है हा बेटर आहे आता. आवाज येतोय? हो येतोय. थैंक यू. पेशेंट कन्वर्सेशन. पेशेंट ने बोला मुझे कमर में दर्द है और पेशाब में जलन होती है और खून निकलता है. डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा. पहले ही मेरे 3 LSCS हो गए हैं और अभी मुझे ऑपरेशन नहीं करना, गोली दवा से निकल जाए तो अच्छा. तो मैंने बोला ऑपरेशन से आप इतने क्यों डरते हो? तो पेशेंट ने बोला ऑपरेशन के बाद मुझे और मेरी जान को कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा? He has 3 female daughters, all are LSCS. हस्बैंड तो दूसरी शादी कर लेंगे पर आने वाली औरत मेरी लड़कियों को थोड़ी ना अच्छे से देखेगी. मैं लड़कियों का बहुत ख्याल रखती हूँ, उनका सब टाइम पर करती हूँ, तो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे हस्बैंड ने तीसरी लड़की जब हुई तब ऑपरेशन करने को साइन नहीं किया, तो उसे मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया. और मुझे यकीन है कि मेरे घर वाले मुझे और एक बार चांस लेने को राजी ही करेंगे. जब तीसरी लड़की हुई तो उसे देखने कोई भी नहीं आया, तो मुझे बहुत बुरा लगा. जब से माँ गुजर गई है तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है. दिस इज द केस. कुछ समझ में आया पेशेंट की कंडीशन? पेशेंट ने ऑलरेडी 3 LSCS हो चुके एट द एज ऑफ 28 years and her husband is not allowing her to get operated, pubectomy done. And the sentence she told is, मुझे यकीनन है कि मेरे हस्बैंड जो हैं और तीसरी बार मुझे चांस लेने लगाने वाले. तो इससे क्या समझ में आता है? तो मैम fear injury, element हाँ. from anger suppressed, या or delusion हाँ. neglected. He or she is neglected. नेग्लेक्टेड. जी हाँ. मैम. और fear of insecurity towards her daughters. Element from domination. हाँ. एलिमेंट्स फ्रॉम Domination. एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज. उसकी माँ की डेथ हो गई, उसके बाद एलिमेंट्स चालू हो गए, अनसपोर्टेड लगने लगे उसको. हाँ, उसके बाद में एलिमेंट स्टार्ट नहीं हुए सर. जब 3rd फीमेल बेबी हो गई तो उसके बाद में एलिमेंट स्टार्ट हो गए. जब से माँ हाँ, गई तो तब से उसको सबसे ज्यादा फिक्र ये है कि अगर मुझे ऑपरेशन में कुछ हो गया और हाँ. मेरी मौत हो जाती है तो हस्बैंड तो दूसरा शादी करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या हाँ. होगा? केयरफुल ऑफ लव्ड वंस. और कॉक्युलस लग रही है, कॉक्युलस कॉक्युलस लग रहा है, कॉक्युलस लग रही है. हाँ. और रिकॉग्नाइज रियलिटी. या मैम स्टेबिस एग्रिया. क्यों सर? स्टैटिसएग्रिया क्यों लग रहा है? मैम इसमें fear injury लिया है और element from anger suppressed, और इसके बाद में तीसरा नेग्लेक्टेड जो रूब्रिक है उसमें से मैम स्टेबिस एग्रिया आई. स्टैटिसएग्रिया में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन. वो क्या बोलती है, मुझे यकीन है बोलती है. अगर डोमिनेशन होता तो क्या बोलती? वो मुझे परेशान करते हैं या फिर मुझे वो करा के लेंगे. बट शी व्हाट शी डिड, उसे यकीन है बोलती. शी रिकॉग्नाइज द सिचुएशन दैट हर हस्बैंड इज गोइंग टू इम्पोज हिम, और उसके ऊपर वो डोमिनेशन नहीं आता सर यहाँ पे. शी जजमेंटेड द सिचुएशन एंड उसके ऊपर उसने ये एनालाइज किया है कि वो हस्बैंड जो है चांस लेने को लगाने वाले ही है. सर ये मैडम ये मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड आएगा, बहुत ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है. हाँ मैम सही है. और पेशेंट क्यों आया हमारे पास? शी डजंट वांट सर्जरी इसके लिए. या कुछ हो जाएगा, डिसीव्ड हो जाएगी शायद, ऐसा ऑपरेशन में कुछ हो गया. अच्छा करने के लिए कर रहे हैं ऑपरेशन, बट अगर मर गई तो ऐसा उसको डर लग रहा है कि फायदे के लिए कर रही है बट नुकसान हो गया तो कुछ ऐसा उसकी जान को खतरा है, ऐसा शी इज फीलिंग ना.
कि मेरी ऑपरेशन में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट रूब्रिक टू टेक, बट आई अंडरस्टैंड कि उसको लग रहा है कि वो ऑपरेशन में कुछ गलती हो गई, मर गई तो बच्चों को कौन देखेगी, हस्बैंड तो दूसरी शादी कर लेगा, बट 3 बेटियों का। आफ्टर द ऑपरेशन जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, जब उनको बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन नहीं करना चाहते। व्हाई मे बी सबसे मेन बात ये है कि जान जाना ये सिर्फ नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, आप जब बोल रहे हैं ना उसको नुकसान होगा, जैसे वो बच्चे ने बोला कि फियर इंजरी, इंजरी हील हो सकती है, जान जाने के बाद वापस आ सकती है क्या? रूब्रिक लेवल थोड़ा सोचिए। मतलब यहाँ सर फियर ऑफ डेथ लेना चाहिए, वो देखेंगे, पद्मा मैडम बताएंगे, आप सोचिए ना सबसे पहले। ओके सर। लेकिन वो उसके बाद में भी उसका क्या है, फिक्र क्या है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। चूंकि उसने अभी तक देखा है कि हस्बैंड का बिहेवियर अभी तक कैसा था, उस पर से उसने कुछ कैलकुलेट किया है, और वो कैलकुलेशन करके वो इस नतीजे पर पहुंची है कि मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड तो दूसरी शादी कर ही लेंगे, फिर मेरे बच्चों का कौन देखेगा, क्योंकि मैं मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, ऐसा ध्यान कौन रखेगा। और ये सही बात है ना। हाँ बराबर। बच्चों का ध्यान रखती है क्या? किसी भी माँ को ऐसा लगता है क्या कि मेरे अलावा मेरे से ज्यादा कोई और औरत मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगी? आप सब महिलाएं, आप सब बोलिए, आपको लगता है ना? तो आप इसको आप एनालिटिकल माइंड से मत सोचिए, इसको आप इमोशनल माइंड से सोचिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि एम्पैथी कीजिए, आप थोड़ा सा उसके लिए सहवेदना लाइएगा, जस्ट ऐसा टेक्निकल मत कीजिएगा। एंड उसने ये भी बोला, मुझे कॉक्यूलस लग रहा है। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। नमस्ते मैम। नमस्ते लियाकत सर एंड ऑल। ये केस का पूरा एनालिसिस जब मैंने किया तो ये आया फिर एक तो ये 28 साल की महिला है और इसके 3 लड़कियां हैं और इसको बैकेज हो रहा है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, जलन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम इसको चल रहा है। और ये 3 बार ऑपरेशन या कुछ हुआ है जिसके चलते ये दोबारा फिर ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। अभी इसको जो प्रॉब्लम है राइट साइड सीने में जो 15 mm का स्टोन है, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ये बोले नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, अगर बोली दवा से निकल जाए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर मैं गई ऑपरेशन को, अगर मेरे को कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चों लोगों को कौन देखेगा? वो पति तो दूसरा शादी कर लेगा, बट हमारे बच्चों का क्या होगा? तो एक तो जो माँ थी हमारी वो भी गुजर गए, उसके चलते अकेलापन फील हो रहा है। तो ओवरऑल फील मुझे सीपिया का लगा। एंजाइटी, चिल्ड्रन, फियर ऑफ डेथ, फियर इंजरी, ये सब। क्यों इंजरी क्यों ले रहे हो आप? सर वो ऑपरेशन से भाग रही है ना और ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है, उसको डेथ का भी डर है। तो इंजरी मैं अभी समझाया ना बेटा, इंजरी छोटी चीज है, इंजरी हील हो सकती है, मरने के बाद इंसान वापस आ सकता है क्या? ऑपरेशन। और दूसरी बात, उसको ये जो लग रहा है इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसके जाने के बाद देखो नॉर्मली एक फीमेल गुजर जाती है, उसके बाद में उसके बच्चों का कौन ध्यान रखता है? ज्यादातर नानी रखती है। तो इसकी तो माँ भी गुजर चुकी है। यस सर। समझ गए ना? हाँ, तो ऑब्वियस है ना। अच्छा, जितने लोग ये कॉक्यूलस बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें से 90% लोगों ने वो स्लाइड जो आगे चल गई थी वो देखी थी। प्रिया तू जरा स्लाइड व्यवस्थित लक्ष्य दे। नो सर। हाँ सर, वो दिख गया था। ध्यान नहीं देती है प्रियंका स्लाइड व्यवस्थित कर। हाँ सर आम्ही रूब्रिक टाकले। इसमें से ना ये जो बहुत शानपना कर रहे हैं ना, ये वो सब डाल रहे हैं ना, ये ज्यादातर लोगों ने देखा है एनालिसिस, वो फटाफट स्लाइड देख लिए। नो सर। देखा है, वो केस को स्पॉइल ना करें। डिस्कशन बाकी नए बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनको
सीखने दे। हाँ पद्मा बोल। नहीं, यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है ना, हम क्या सोचते हैं कि इसको बच्चों का जो है ना फिक्र ज्यादा लग रही है, तो कॉमनली वी टुक द रुब्रिक एंजाइटी चिल्ड्रन सपोर्ट। सबके दिमाग में यही रुब्रिक पहले में आ जाता है। तो यहाँ पे है ना, जो उसको एंजाइटी नहीं है, वो क्या कर रही है कि जो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इसकी उसको फिक्र है। उनका क्या होगा, इससे भी ज्यादा जो मैं ख्याल उनका रखती हूँ, सब टाइम पे करती हूँ, वैसा वो कौन करेगा। जो आने वाली औरत होगी वो इतना तो सब नहीं कर पाएगी। और दूसरा जो क्या है कि ऑलरेडी शी हैड 3 LSCs एट द एज ऑफ 28 years and she knows that her husband is going to insist her to take the 4th chance. तो और एक ऑपरेशन मुझे करने वाला है आगे जाके, तो इट इज बेटर टू अवॉइड दिस ऑपरेशन। ये उसका मेन कंसर्न, उसका मेन थिंकिंग था। इसके हिसाब से अगर हम एंजाइटी चिल्ड्रंस लेते तो वेनिला आ जाता, लेकिन वेनिला नहीं। कांग्रेस तो सबको एक ऑक्यूलस ही दिया था मैंने। मैडम एंजाइटी चिल्ड्रन क्यों नहीं है, वो थोड़ा समझना था। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना, फर्स्ट तो हम सबको यही आता है कि एंजाइटी चिल्ड्रन सपोर्ट। इसको सिर्फ एंजाइटी एंड केयर जो है ना, इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंजाइटी सिर्फ फिक्र करते हैं, जो केयर करते हैं उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। एंजाइटी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, जस्ट ओनली थिंकिंग, और क्या कर सकते, कुछ एक्शन नहीं रहता उसमें। जब केयर करते हैं ना, उसमें एक्शन रहता है। शी टेकन द एक्शन, क्योंकि सबने एनालाइज, उसने सिचुएशन एनालाइज किया और उसकी केयर है बच्चों की, इसके लिए उसने वो ऑपरेशन छोड़ के मेरे पास आ गई। ओके ओके, समझा। हाँ, मेन रुब्रिक ये था। And one more important thing between anxiety and care, as far as repertory is concerned, is the rubric is anxiety children about, and the other rubric is cares full of. Okay, मतलब she is full of cares for the children. उसके सिवा कोई और टॉपिक नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोचती है। cares and worries. तो cares and worries आया उसके साथ में। Please remember, so cares is a next step of anxiety. Not all people who are anxious take care. Please remember. लोग बोलते हैं कि सब फिक्र बताते हो, करते तो कुछ नहीं। हाँ बराबर। तो मराठी में एक कहावत है, वरवर माया उपाशी निज गया। मतलब सिर्फ एंजाइटी बताते हैं और करते कुछ नहीं है। सर वापस बोलिए वो मराठी वाला। वरवर माया उपाशी निज गया। अच्छा सर हिंदी सर। हिंदी में ये आप ऊपर बताते हैं कि आप बहुत, जैसे आपको किसी के प्रति प्रेम है, लेकिन सामने वाला सोता है, खाना बगैर खाए सो जाता है, कभी आपको उसकी फिक्र नहीं होती है। दिखावा ज्यादा है करने से। हाँ, तो एंजाइटी में जरूरी नहीं कि दिखावा हो, एंजाइटी में फिक्र नहीं की। और दूसरी बात, एंजाइटी में यू आर इन द एंजाइटी ना, यू आर एंग्शियस, क्या होगा। बट एंजाइटी के साथ साथ आपको बाकी चीजें भी होती रहती है, हो सकती है। Whereas in case the patient is totally, cares full of, again please remember, the patient is totally in the care. And one line you please remember, care is anxiety in action. Okay. Hello. And care is anxiety in action. Okay. Like anxiety is fear in action. Okay. When you are scared of something, and then you start feeling the fear, you start feeling that anxiety. Okay, just like you are scared of snakes, but when you actually see the snakes, then you are in the anxiety. क्या होगा, अभी सांप है यहाँ पर, कैसा होगा। And then you are careful, when you are taking care, then you take care. You start wearing the shoes, you carry a stick. Do you understand? So that you can fight the snake or you can avoid the snake. Do you understand? So fear, then anxiety, then care. Okay, these are the steps. Yes, हाँ समझा सर। Okay बेटा, पद्मा carry on. प्रिया, हेलो। तो इसमें मेन रुब्रिक मिल जाता है वो मैथमेटिक्स की।
I had taken only 2 rubrics, mathematics ability and elements from anger suppressed. I had gave her calculus 6C BD for 3 days, and after 15 days she came with severe pain again. At that time, after giving the water dose of 6C, there is no relief. Then we changed the potency to 200. 203 doses देने के बाद every 15 minutes, she passed the stone next day morning without any major pain. I will show the stone. Priya. हाँ, ये जो स्टोन है ना क्रश होके आया, तो 15 mm का था। जब वो पेन में आई थी तो बहुत ही रेस्टलेस, इतना रेस्टलेस थी, 200 के 3 डोज लेने के बाद पूरा हो गई और घर जाकर आराम से सो गई। फिर बाद में मॉर्निंग पास जब यूरिन पास हुआ तो स्टोन सभी बाहर आ गए। Proceeding to the second case. Priya. मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैथमेटिक एबिलिटी एक बार समझा दीजिए, समझ नहीं आता मैम ये वाला रूल। हाँ, मैथमेटिक्स एबिलिटी जो है ना, ये एबिलिटी है, उसकी स्किल है, उसका इनबिल्ट है, उसका जो स्किल और उसका जो कैपेसिटी है एक ह्यूमन बीइंग की टू जज। मैथ्स में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस सॉल्व करते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करके उसको सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स एबिलिटी मींस वो जो पर्सन है उसको एक जजमेंट आ जाता है सब कैलकुलेशन करके, हम क्या कर सॉल्व करके जजमेंट निकालते हैं ना। तो सिचुएशन को वो क्या करती है, कॉकुलस पेशेंट सिचुएशन और पर्सन, इट्स कॉमनली सीन इन ओल्ड एज पेशेंट्स नाउअडेज। जब जो मदर इन लॉज और फादर इन लॉज होते हैं वो देखते हैं जो अभी वर्किंग वुमेन्स रहते हैं ना, सभी बहू, तो एक्सेप्टेड द सिचुएशन एंड उसके ऊपर से एक हिसाब से उनको एक जजमेंट आ जाता है, तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते उसके ऊपर, ये ऐसे ही रहता है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना। यस मैम। हाँ, दैट इज द मैथमेटिक्स एबिलिटी एंड दे आर वेरी क्लियर विद बिजनेस। जो ज्यादातर मैंने जो पेशेंट देखे हैं कॉकुलस के, वो बहुत अच्छा सेटल हो जाते हैं बहुत जल्दी से, उनकी मैथमेटिक्स एबिलिटी की वजह से। कोई जो काम करते हैं उसका अंदाजा पूरा उनको आ जाता है। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम इसमें इस केस में जो है मैथमेटिक्स एबिलिटी कैसे हो गया, ये काइंडली बताइएगा। हाँ सर, इस केस में उसने क्या किया ना, उसका जो सिचुएशन था, बट कॉकुलस एट द सेम टाइम शी इज इन यील्डिंग डिस्पोजिशन। उसको मैथमेटिक्स एबिलिटी था, लेकिन वो 3 बार जो है ना LACS के लिए उसको तैयार हो गई ना। फिर जब 4th टाइम आया तो तब उसको ये चिल्ड्रन की जो केयर का जो प्रॉब्लम था ना, वो उसको ज्यादा लगा। तो सिचुएशन उसने क्या किया कि हस्बैंड कैसा है ये पूरा उसने जान लिया। आफ्टर मैरिज एट द एज ऑफ 28 years उसने पूरा ये उसका एक कर लिया ना, जज कर लिया हस्बैंड क्या है, उसके हिसाब से कैसे हमको एडजस्ट करना है और क्या करना है। She didn't arguing with him, और उसने कुछ नहीं किया ना, उसको ब्लेम नहीं किया कि और उसके अगेंस्ट जाके कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। She accepted that all things and she calculated the situation and judged the husband and taken the decision. अच्छा, एक बात बताइए, ये सवाल किसने पूछा कैलकुलेशन एबिलिटी? सर डॉक्टर एच शाकिर फ्रॉम पाकिस्तान सर। अच्छा शाह साहब, 2 + 2 कितना होता है? सर 4 होते हैं। 2 + 2 = 4। 4 + 3 7 सर। Simple calculation. Did it require something great? Hello. To come to this 7, did it require something great? नहीं सर, नहीं। इतना सिंपल कैलकुलेशन उसने किया कि एक माँ है, मैं इतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ मेरे बच्चों का। एक जी सर। हस्बैंड ने मुझे सेकंड
ऑपरेशन के वक्त भी नहीं आया, बराबर है। जो बंदा अब मेरा ध्यान नहीं रख रहा है वो बाद में तो मुझे 100% बोलेगा ही कि मुझे एक बच्चे के लिए और एक डिलीवरी करनी है, बराबर है। जी दूसरा, जी सर। अब मेरे बच्चों का ध्यान मेरे मरने के बाद कौन रखेगा? मेरी माँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो सर। मेरे बच्चों का बात ध्यान रखने के लिए अभी कोई नहीं बचा है। ये सिंपल चीज है। ठीक ठीक सर। 2 + 2 = 4 + 3 = 7 वाला कैलकुलेशन है, सिंपल। सही तो सही सर। ठीक सिंपल कैलकुलेशन से डेढ़। सर फिर ओके, ये सॉरी सर, ठीक होगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कैसे होगा बेटा? मैं समझ गया आपका बात। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, इसमें रीजनेबल वाली बात में मोल भाव होता है, कम ज्यादा होता है, आप समझे? रीजनेबल वाली बात के अंदर मोल भाव होता है। रीजनेबल वाली बात के अंदर थोड़ा सा बार्गेनिंग का एक ये होता है समझे? रीजनेबल वाली बात में बार्गेनिंग वाला इश्यू आता है। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, और यहाँ पर इसने उसके हस्बैंड का नेचर जानने की कोशिश की है, समझ गए? उसके हस्बैंड का नेचर और उसके आने वाली एक्शंस क्या होगी, इसके बारे में ये लेडी ने कैलकुलेट किया है। सर व्हाट अबाउट क्लैरिटी ऑफ माइंड? No, because she's not using mind here. She is all using emotions here. Where is mind अच्छा here? सर, ओके ओके समझे? Where is mind, beta? She's thinking of her daughter. She's talking Practically of her सोच रही mother. हूँ। Understood? हाँ 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 आप समझे? क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए मैं आपको एक सिंपल वर्ड देता हूँ, सॉर्टेड, SORTED। ओके, मतलब बहुत सोचने के बाद जो कुछ लोग अपन बोलते हैं ना, ये बंदा बहुत सॉर्टेड है, अच्छा, मतलब इसके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके ओके, हाँ वो समझ गई। क्लियर ना? क्लियर मतलब क्या? राइट, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, इसमें ओके आप सर। तुरंत ऊपर से नीचे देख सकते हो, मतलब ये बंदा अपने मन को अच्छे से पढ़ सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कटली पढ़ He सकता knows है। what he is doing, very clear about it. He knows, I know what I want and वाला his जो है वो ability, एडवर्टाइज आता है, वो सिगरेट वाला, I get what I want, I know what I हाँ, want, ये वो वाला। ओके, ठीक है सर। कैलकुलेशन एबिलिटी और समझो। यहाँ पे बहुत पेशेंट है ना, ज्यादा सामने वाला का मुश्किल जज शब्द कर में रही मत है। जाओ, मतलब वो एकदम थ्योरम वगैरह में मत जाओ। कैलकुलेशन इज सिंपल। 2 + 2 मैं बताया ना कि 2 + 2 = 4 - 3 whatever, दिस इज अ प्लेन कैलकुलेशन। मतलब हस्बैंड आया नहीं तो क्लियर ही हो गया कि बाबा ये आया बाद में देखेगा ही नहीं, तो शी बिकेम मोर अवेयर अबाउट इट। हाँ Exactly, मतलब he is a hypocrite, she knows, and what Dr. Padma told is that she is not blaming him at all. She is not blaming any situation. She is just understanding the situation and taking actions. Do you understand? बराबर है, हाँ समझा। ये बहुत ये चीज सबसे मेन है, ये उसकी एबिलिटी दर्शाता है, मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, समझे? हाँ हाँ समझा सर। हाँ, मतलब ये लेडी वो खुद भी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं गई। हाँ, ब्लेम वगैरह करके ये लेडी एक्शन ले रही है। इसने सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर लिया और उस हिसाब से एक्शन लिया। ओके ओके, कैरी ऑन। Going to the second case. प्रिया, हाँ प्रियंका, गायनो करो का आता स्लाइड पुढे न्यायची। हे बघ, ए भाई दम मार जरा प्रियंका, तुझे बोट बाग घे चालली कुठं? ये सेकंड केस second case, it is a case of 55 years lady, renal calculus. In sonography, there is a calculus of L1.3 mm in lower third of right ureter. Family history में husband, 3 sons and 3 daughter-in-laws and grandchildren. Patient's mother, who is now nowadays bedridden patient, in maternal state, there are 2 sisters, having an elder sister with whom the mother used to stay earlier. She don't have the brother. And she came to me because she is having hypertension and diabetes mellitus both. And so the urologist told them to don't operate as it is not in control. BP और sugar जो है ना control में नहीं रहता था, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन नहीं कर सकते. So patient came to me.
पेशेंट में मदर जो पहले बेड रिडन थी, बिफोर 6 months her mother fell down with convulsions. That time her sister didn't took proper care, so she brought her mother to her own place. Since then she got the recurrent urinary complaints and consulted so many doctors. Everyone suggested to take medicine, not able to operate as she has hypertension and diabetes mellitus. Patient का look कैसा था? Lady is very neat and clean with all the reports in hand. First time I gave her medicine and she went to the home and came again with pain subsided, but the anxiety और the fear जो था ना उसके चेहरे पे वो इतना कंटिन्यू रहता था हर बार जब आती थी. तो मैम स्टोन गिरना चाहिए, उसका एक ही कंसर्न रहता था. मैम pain had subsided but the stone also should pass. And in the follow-up, she said, yesterday night I had severe pain and I was very restless, but my son was busy with someone, told me that we will go to tomorrow, and I kept quiet. His work is also important. ये बोलते हुए बहुत उदास लगी थी और बोली इसलिए हम नहीं आ पाए, तो आज आ गए. And that time I changed that medicine and given her 200 dose. And after 15 days, she again came back with severe pain. That time she is very restless. बहुत ही ज्यादा हो गए तकलीफ. तो उसके बाद में हमने उसको फिर मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करके दिया. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसका पेन पूरा कम हो गया और स्टोन पास हो गया. तो क्या समझा अभी तक? बोलिए सर. हेलो. मम्मी का काफी केयर करती है. प्रिया रेपर्टरी खोल बेटा. They are only 2 daughters. हाँ, जब उसे लगा कि बड़ी बहन अच्छा ध्यान नहीं रखती है तो शी इज केयरिंग फॉर हर मदर. सो खुद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नहीं मेरी माँ को मुझे देखना ही चाहिए. हाँ हाँ, और उसकी माँ को अपने घर लेके आई. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयर भी है, दोनों. हाँ, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, और मैम मैटरनल एक्सटिंग एग्जैगरेटेड है, प्लस उसका प्रेजेंटेशन हुआ है नीट एंड क्लीन है. वो प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह लेके आई थी. मुझे थोड़ा आर्सेनिक का फील आ रहा है. और पद्माच्या स्क्रीनला हायलाइट कर ना ग. पद्माच्या याला स्पॉटलाइट कर प्रियंका. आहे सर स्पॉटलाइट. आहे सर स्पॉटलाइट असेल. अच्छा. इसको हाइपरटेंशन और बीपी दोनों की मेडिसिन चालू थी, तो उसकी वजह से वो पेशेंट मेरे पास आए थे. ऑपरेट नहीं कर सकते इसके लिए क्योंकि बीपी और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था. ऑपरेशन करने का था उनको, दे आर रेडी फॉर द ऑपरेशन, बट बीपी और शुगर कंट्रोल में नहीं था, तो मेडिसिन ट्राई करने के लिए आए. एंड उसकी जो माँ थी ना, पहले दूसरी जो बहन थी उसके साथ रहती थी, और वहां पे उसकी माँ को एक बार कन्वर्जेंस आ गए, तो वहां पे वो गिर गई. तो उस वक्त बहन ने कुछ ज्यादा केयर नहीं किया, ऐसा उसे लगा, तो उसने तुरंत वहां से अपने पास लेके आए. मैडम मैंने 3 रूब्रिक लिए हैं. केयर्स फुल ऑफ फास्टिडियस है अपना तैयार होने में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली. ये 3 रूब्रिक मैंने लिए हैं. शुरुआत में आर्सेनिक आ रहा है, इग्नेशिया, नेट्रोम्यूर, पल्सेटिरा, कैलकेरिया. ये पहले 5 ड्रग्स है ये 3 रूब्रिक में से. अच्छा, टोटल केयर्स फुल ऑफ ले लिया आपने, उसके नीचे भी कोई सब रूब्रिक नहीं लिया डॉली? कैसा? हेलो हेलो. हाँ बोलिए.
मैम हाँ, बोलिए। इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड लव्ड केयर्स एंड वरीज लव्ड वर्ल्ड ओवर नहीं आएगा क्या? वो मतलब जब माँ की तबीयत खराब हुई उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, जिसमें सिर्फ 2 रेमेडी है, कॉक्यूलस और वेनिला। हाँ, अच्छा, अभी आप आएगा कि नहीं आएगा ये आप सिर्फ अपना बताइए। क्या अभी लेंगे? आप, हाँ वो मैडम लास्ट में बताएंगी, आप पहले बताइए कि क्यों लग रहा है आप। सर उसको एलिमेंट स्टार्ट हुए जब वो माँ को लेके आई और साथ ही उसको यूटीआई आना स्टार्ट हो गया, तो इसकी हाँ, वजह से वहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वेरीज आ सकता है। वो माँ की केयर उसके मन में थी, उसका कंसर्न था, बट जैसे ही उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके आई तो उसको यूटीआई आना स्टार्ट हुआ। हाँ, तो दिस इज द कॉज एलिमेंट्स फ्रॉम। तो क्या लेंगे केस सर? कॉक्यूलस ही है मैम ये भी। केस फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट सर, लियाकत सर, दूसरा Yes, रुब्रिक this एंड is the एलिमेंट्स फ्रॉम केस लवेड वन ओवर। हाँ, अच्छा, ओके ओके डॉली। मैम मैंने भी 2 रुब्रिक लिए थे, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज लव्ड वन ओवर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। इसमें कॉक्यूलस ही आ रही है। राइट, सेम। देखो आप लोग सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने रुब्रिक एकदम बिंदास लीजिए, देखो हाँ, और बताइए और डरिए मत। देखो आप एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो, है ना। क्या होता है ना, वो एक कहावत है ना कि द वन हु आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड अ फूल फॉर अ मोमेंट, ओके, बट द वन हु डजंट आस्क एनी डाउट इज अ फूल फॉर एवर। हाँ सर, ओके, तो आप प्लीज, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप और भी बच्चे इसमें पार्ट लीजिएगा, बच्चे मतलब डॉक्टर्स, सॉरी सर आपके हम बच्चे ही है, हम तो एकदम केजी के स्टूडेंट है अभी आपके सामने। नहीं, हम सभी स्टूडेंट स्कूल में ही हैं अपन। बोलिए। Ma'am, I felt she was very yielding because when she was in so much pain, but her son was busy, so she yielded to the situation. So that okay, we'll go tomorrow. So हाँ, सही है। पेन में भी उसने इंसिस्ट नहीं किया लड़के को लेके जाने की। और What is this, Sonam? This is yielding. You took this as yielding. yes, sir. What other thing can be बहुत possible? सह लिया मैम, पेन बहुत सह लिया उसने और बच्चों को पेन बोला सह- भी नहीं कि जाना ही चाहिए। तो पेन सह लिया ना, हाँ, या तो क्या है तो ये सर yielding? ये हाँ, केयर भी है और थोड़ा एंजाइटी भी है उसके लिए कि बच्चे का सब सहन होना शक्ति चाहिए। है। थोड़ा सोचिए ना, फिर थोड़ा गहरा। बड़े ऐसे क्या होता है, देखो आप लगाने के लिए आप 50 रुब्रिक लगा दोगे, सिर्फ हेल्पलेसनेस भी है ना ये? जो भी है आप सोचिए ना, थोड़ा सा गहरे में सोच के, हो सके तो ना 2-3 रुब्रिक में ही केस निकालने की कोशिश किया कीजिए। आप लेने के लिए आप 100-50 रुब्रिक ले लोगे, उसमें रेमेडी आएगी भी आपकी। सर इसने रिकॉग्नाइज किया फिर सिचुएशन को? सर मत बोलो, मैडम का केस है और मैडम आपको किसी भी एंगल से सर लग रही है क्या? प्यारी बेटी, मेरी छोटी प्यारी रिकॉग्नाइज बहन। किया। फिर क्या बोला आपने? रिकॉग्नाइज किया सिचुएशन को। इसने बेटे को बोला भी मैं नहीं, कोई बात नहीं है, कल चलेंगे जो भी है। हाँ, मैम हेलो। हाँ, हेलो मैम, मुझे यहाँ पर एक रूब्रिक लग रहा है, रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग मूव बट कैन नॉट कैटालेक्स इन। मतलब वो सब कुछ समझ रही है अपने आसपास कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ या मैं मुझे जाना है बट मैं नहीं जा सकती हूँ, पर वो कुछ कर नहीं पा रही है अपने बेटे अपने मतलब केयर्स एंड वरीज की वजह से। हाँ, यू आर राइट मैम। इसको भी मैंने कॉक्यूलस ही दिया था, इसके लिए मैंने शेयर किया दोनों केसेस।
we send the patient in small situation. उसने क्या किया रिएक्शन उसका जो था, रिकॉग्नाइजेस द सिचुएशन जो है ना, अब एक छोटा सा सेंटेंस भी जो पेशेंट बोलता है उसके ऊपर से भी हम ले सकते हैं अगर हम प्रॉपर उसके हिसाब से थिंकिंग करें तो। पहले तो मैंने उसको वेनिला दिया था, पर वेनिला से उसको सिर्फ पेन कम हो गया था, बट द पेशेंट इज वेरी स्टिल एंग्शियस। उसको जब तक वो स्टोन नहीं जाता उसको ये नहीं रहता था, सुकून नहीं, ऐसे बोलती थी। एंड अनदर थिंग, वेनिला जो है ना इतना केयरफुल नहीं रहती जितना पॉपुलस रहती है। वो जो पेशेंट है ना हर बार रिपोर्ट्स लेके आती थी। मैंने फर्स्ट टाइम जब उसका रिपोर्ट्स नोट डाउन किया तो फिर ज्यादातर पेशेंट फिर बाद में नहीं लाते, लेकिन शी यूज्ड टू ब्रिंग ऑल द रिपोर्ट्स, वो पूरा अपना बैग लेके आती थी हर बार। एंड जब उसने फॉलोअप में ये सिचुएशन बताया कि लड़के को बोला कि बहुत दर्द हो रहा है, पर उसका काम चल रहा था ना, तो मैं चुप बैठी, कुछ बोली नहीं। और जब मुझे उसने बताया तो बहुत ऐसे सैड फीलिंग था उसके चेहरे। तो कॉक्लियस क्या करता है, सहन कर, क्योंकि उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, केयरफुल ऑफ अदर जो है इसके लिए। मैडम तो उसको भी मैंने, हाँ मैम इसको वो जो रिपोर्ट्स बार बार ला रही है उसको फियर बीट रेट भी ले सकते हैं क्या? फियर बीट रेट नॉट नेसेसरी मैम। ये जो ना पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आना, क्यों लेंगे? व्हाई विल यू टेक फियर बीट रेट? सर उसको बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं मैडम से मिस्टेक ना हो जाए, या मेरा स्टोन नहीं निकल रहा है, या मेरी रिपोर्ट बराबर नहीं देखी है, या दवाई बराबर नहीं हुई है, तो इसीलिए बार बार रिपोर्ट लाना। बार बार जो दिक्कत, लेकिन उसकी बाकी की कोई भी चीज, उसकी बाकी की कोई भी चीज में ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा होगा? नहीं सर। हाँ, सिंपल। मतलब इसका दूसरा मतलब निकलेगा कि पेशेंट इज केयरफुल। शी इज केयरिंग फॉर द डॉक्टर आल्सो, उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तुरंत रिपोर्ट देख के हेल्प कर सकती है। हाँ, ये भी सोच के कि अरे डॉक्टर भूल सकता है इसलिए लाके लेकर आओ, बट उससे ज्यादा ना, ये सब चीजों से ज्यादा ये है कि शी इज अ केयरिंग लेडी, सिंपल मतलब। हाँ, सब लेके जब क्या मालूम कब कोई रिपोर्ट में लग जाए, हमें डॉक्टर के पास जाना है तो पूरी तैयारी करके जाना। सही बात एकदम। हाँ, ये उसका मेन थिंकिंग था। एंड शी केयर्स अबाउट डॉक्टर्स आल्सो ना, जो सब लेके आते हैं, टाइम पे आते हैं, फोन करके आते हैं, पेशेंट जो रहते हैं वो डॉक्टर का भी केयर करते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, उसको आपकी भी चिंता थी कि आप कहाँ ढूंढते बैठेंगे, मैं ही रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये भी एंगल है, वेरी गुड, वेरी केयर की मैम उसने। वेरी नाइस डॉली। अच्छा वो बताइए उसके बारे में, उसने उसके बेटे के साथ में क्यों नहीं गई उस वक्त? कोई और बताओ क्या वजह है? What can be the reason why she said कि ओके बाद में जाते हैं? उसको ऐसा लगा होगा कि बेटे का काम ज्यादा जरूरी है मेरी तकलीफ से, सो लेट हिम गेट द वर्क डन। ऐसा एक हो सकता है, मुझे लगता है कि she did not want to disturb him in his work. Okay. I don't know. I feel it that way. And what else? Very good. मतलब उसने अपने खुद की पीछे रखा, अपनी जरूरत को, हाँ, बेटे की तकलीफ को आगे रखा। और सर बच्चे आजकल सुनते भी नहीं है, इतने इमीडिएटली वो अटेंड भी नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं ऐसा आजकल ये बात जो है ना, ये मेरी माँ भी बोलती थी, मैं भी बोलता हूँ, मेरी दादी भी मेरे बाप के बारे में बोलती थी, मेरी माँ मेरे बारे में बोलती है, और मैं अपने बच्चों के बारे में बोलता हूँ। ये आजकल वाला सेक्टर, समझिए ये चलता रहने वाला, खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर आज और कल है, हमेशा याद रखिए। और ये कल टुमारो है या यस्टरडे किसी को पता नहीं है, तो ये आजकल वाली बात नहीं है डॉली। इसके पीछे मेन ये है कि कॉक्युलस का जो होता है ना, डिजायर्स नथिंग, वो किसी से भी कोई चीज की डिजायर नहीं रखती है, बिकॉज कॉक्युलस इज बेसिकली अ कंटेंट पर्सन, है ना?
समझ गए ना? तो कंटेंट, अब देखो कंटेंट वो अंदर से है कि नहीं अपने को पता नहीं है, आपकी बात समझो। समाधान दिखना और समाधानी होना ये अलग चीज है फिर से। अब हमको जो बंदा समाधानी दिख रहा है उसको भी हम कंटेंट ले सकते हैं, और जो बंदा सचमुच में समाधानी है उसको भी हम कंटेंट ही रूब्रिक लेंगे। समझे? हाँ तो सर यहाँ पे डिजायर्स नथिंग रूब्रिक लग सकता है, the way this lady. मैं बताया ना डिजायर्स नथिंग। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। सर ये रूब्रिक सिंथेसिस में नहीं है क्या, कंटेंट और डिजायर्स नथिंग? बाबा आपको उसी दिन बताया मैं एंजल कि 3-4 रूब्रिक्स आप ढूंढ, 3-4 रेपर्टरीज ढूंढो। आपने 2 दिन में कुछ किया ही नहीं मतलब। सर एंजल पगारिया, यस सर, ये कंप्लीट डायनामिक्स में है डिजायर्स नथिंग एंड इसमें 34 रेमेडीज है। सब में है बेटा, सब में है बेटे, ये सिंथेसिस में भी है, सिंथेसिस में भी है, हाँ है, इसमें भी बहुत बेसिक 34 रेमेडीज बेटा। एंजल ये बहुत बेसिक रूप है बेटा। अभी आप क्या करो ना, सर आज मैं रेपर्टरी खोल के बैठी हूँ, मुझे सिंथेसिस वाली अरे मैं... आपकी कुछ तो गड़बड़ होगी, आपकी रेपर्टरी आपको धोखा दे रही है, जाने दो, कोई बात नहीं, आप सिंथेसिस वाले को फोन कर लो। सुनो मेरी बात, अभी आप क्या करोगे एंजल बेटा, अभी डिस्कशन कौन सी रेपर्टरी में क्या रूब्रिक है इस पर नहीं चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है कॉक्यूलस की केस पर। आप कृपया उस पर ध्यान दें, है ना? Sir, how to differentiate with self denial? सेल्फ डिनायल ना, वेरी नाइस। आप बताइए व्हाट इज सेल्फ डिनायल? Means not giving importance to self. No. Neglecting oneself. No. Denying oneself. खुद को पीछे रखना, खुद को नकारना। नहीं पीछे रखना नहीं, denying oneself. खुद को नकारना सर, खुद को नकारना। नकारना। यस सर, खुद को नकारना। हाँ ये समझिए, यहाँ पे क्या है, खुद को नकार रही है? नहीं सर, खुद को नहीं नकार रही है, बट अपनी इच्छाओं को दबा रही। हाँ, उसकी सादा इच्छा थी कि मेरा बच्चा मुझे इस वक्त ले जाए, उसने नहीं ले गया, उसके कारण मैडम ने बताया ना कि शी वॉज लुकिंग सैड, है ना? अब सैडनेस के काफी रूब्रिक में कॉक्यूलस आपको मिलेगा, सैडनेस, ग्लूमी, काफी रूब्रिक है सैडनेस के, आप देख लो जाके। कॉक्यूलस इज सैड, कॉक्यूलस दुखी बंदा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो ये भी है। एक बंदा क्यों समाधान की ओर जाता है, आप सोचिए ना, एक बंदा कंटेंट की ओर क्यों जाता है? कंटेंट क्या इतना आसान है क्या? भगवान भी कंटेंट नहीं मिलते अपने को, देखिए श्री कृष्ण भगवान को भी 16 सहस्त्र नारियां, फिर क्या क्या जिनसे प्रेम था उनसे शादी नहीं की, शादी किसी और से की, तो क्या वो भी कंटेंट की अवस्था में थे? तुरंत कंटेंट की अवस्था में जाने का एक सफर होता है। आप जिंदगी के अलग अलग तजुर्बे, जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने के बाद आप कंटेंट की अवस्था में जाते हैं। जन्म से कंटेंट बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, और फिर कंटेंट में जरूरी नहीं कि आप कंटेंट में हमेशा रहोगे भी, समझ रहे हो ना? तो कंटेंट वाली ये चिरकालीन अवस्था नहीं होती है। कंटेंट इज नॉट अ परमानेंट स्टेट। परमानेंट स्टेट इज डेथ, प्लीज रिमेंबर। There is nothing permanent in the world except death. Okay, so content is also not permanent. Or self denial you will see in many things. मतलब the person will deny herself in many things. Okay. Excuse me sir, then ignesia और कॉक्यूलस दोनों का कंटेंट में क्या डिफरेंस होएगा? अरे बेटा वो मुश्किल है समझाना, आप ये केस पे फोकस कीजिए और इसमें आप कॉक्यूलस को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका सवाल है ना बेटा, ये बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है एक, और इग्नेशिया आप कॉक्यूलस के आपको बहुत अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे बेटा, इग्नेशिया की भी आपको अनेक शेड देखने को मिलेंगे। तो आप ये सबसे पहली बात तो मन में एक पिक्चर लाना बंद कर दीजिए। अगर कोई बंदा ये समझाए भी तो वो एक सिचुएशन को पर्टिकुलर लेके आपको समझाएगा। इग्नेशिया मतलब वो नहीं, जैसे कॉक्यूलस मतलब हमेशा समाधान, ऐसा नहीं है। कॉक्यूलस वो इरिटेबिलिटी रिफ्रॉम डिस्टर्बेंस में भी है, डिलीरियम एंग्री में भी है, आप समझ रहे हो? तो जरूरी कॉक्यूलस ऐसी ही अवस्था में एंगर करेगा जी नहीं,
क्या हम लोगों की नेचर को ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम पेशेंट को बीमारी की अवस्था में किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसकी कौन सी नेचर है जो उसको बीमारी की ओर ले जा रहा है, ये दो ही चीजों को हम फोकस में रख के दवाई देते हैं। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा पिक्चर हम ले सकते हैं समझने के लिए सिर्फ, लेकिन वो हमारा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसलिए ड्रग पिक्चर और ये कंपैरिजन में आप बिल्कुल मत जाइए जी। इसमें है उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है उस पर मत जाइए। तो जैसे अभी मैडम ने बताया ना कि वैनिला केयरफुल नहीं रहेगा वगैरह, उधर भी मत आप ध्यान दीजिए। आप ध्यान इसमें दीजिए कि इसमें कॉक्यूलस में क्या मिला आपको, बस सिंपल है। ओके सर, थैंक यू। एक होता है डिडक्टिव लॉजिक, एक होता है इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक में आप डिडक्ट करते चलते कि ये दवाई में ये नहीं है, फिर फास्फोरस नहीं है, ये नहीं है, फिर लैक्टेसिस नहीं है। मान लो आपको 5 रेमेडीज में डिफरेंशिएट करके दवाई देनी है, वो बहुत डेंजरस चीज है। इंडक्टिव लॉजिक मतलब क्या कि हाँ, इसमें जेलसी है, इसमें सस्पिशन है, इसके अंदर फला फला 2-4 चीजें हैं, इसलिए लैक्टेसिस दे रहा हूँ। आप समझे ना? जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। रेमेडीज है बेटा। थैंक यू सर। और उसके अंदर इग्निशिया नहीं है गायत्री जी कंटेंट में नहीं, कंटेंट में इग्निशिया नहीं है, समझिए ना आप। मैं समझ गया कि आप इग्निशिया भी अपने आप को पीछे रखती है, इग्निशिया भी एक माता की तरह बिहेव करती है वगैरह वगैरह, सब सही बोल रहे हैं, आपका सोच सही है। लेकिन आप पिक्चर वाइज सोच रहे हो बेटा, आप रेपर्टरी वाइज सोचोगे ना तो आपको इग्निशिया दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जी ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ पद्मा, चालते बेटा तुम्हें। तो अभी हम कुछ रूब्रिक्स हैं कॉकुलस के, वो देखते हैं। रिया, विशाल, हेलो। हाँ स्क्रीन दिसते है ना? हाँ दिसते। कॉकुलस का एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लवर वन, जो हम कॉमनली बहुत यूज करते हैं, और उसके साथ में एलिमेंट्स फ्रॉम नॉइज एंड एंगर अल्टरनेटिंग विद जस्टिस। कॉकुलस का जो एंगर भी बहुत स्ट्रेन रहता है, कॉकुलस गुस्सा है तो बहुत गुस्सा भी होता है, और उसके साथ में क्विकली वो अल्टरनेट जस्टिंग में भी जाता है। एंगर अल्टरनेटिंग विद वाइवेसिटी, वेरी वाइवेशियस, and irritability alternating with dusting, anxiety, health about others, anxiety nursing during, anxiety nursing after, anxiety जो during the nursing है, means यहाँ ये patient anxiety रहती है लेकिन at the same time he is taking action, nursing the patient or caring about the others, confusion of mind, alcoholic drinks after, delirium anger. डेलिरियम एंगर जो है कॉकुलस का, जो पहले इतना सब कुछ केयर करता रहता है, फिर एक स्टेज ऐसे आता है कि बाद में वो पूरा एंगर जो जितना सप्रेस हो गया रहता है वो डेलिरियस स्टेज में निकल जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे तो पहले कभी बिहेव नहीं करते थे, लेकिन आजकल बहुत ही गुस्सा होता है, छोटी छोटी बात पे भी कुछ भी बोलो तो गुस्सा हो जाते हैं। इट इज डेलिरियस एंगर। And it is there in dwells unpleasant or disagreeable things. जो अभी सर ने बताया ना, कंटेंट बंदा रहता है लेकिन मेरे अंदर से बहुत ही दुखी रहता है। जो अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल थिंग्स रहते हैं उसके ऊपर वो सोचते रहता है, ड्वेल्स, वो उसके दिमाग में घर बन के रह जाता है। फियर इवेंट्स, सडन में कुछ हो ना जाए इसका उसको डर रहता है। ग्रीफ सेंसिटिविटी and most importantly indifference lies with eyes closed. Oculus क्या करता है, recognizes the real situation and helpless है ये समझ में आता है, तो इससे अच्छा है कि indifference होके हम आंख बंद करके बैठे। Indifference lies with eyes closed means situation चलता रहता है, उसके सामने सब कुछ दिखता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तो अच्छा है कि उस तरफ आंख बंद कर, उसको उसकी तरफ से इंडिफरेंस हो जाओ, खुद को अलिप्त करके ले। और मेडिटेटिंग डीपली, ये बहुत ही मार्क रहता है कॉकुलस में।
कॉकुलस एक ऐसा बंदा रहता है कि खुद को एनालाइज बहुत ज्यादा कर लेता है, मेडिटेशन करता है, खुद एनालाइज करता है डीपली, और मैथमेटिक्स एबिलिटी। फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड, इतना जब दिमाग यूज करता है सबका कर करके वो थक जाता है। टॉकिंग केयर, टॉक्स अबाउट नथिंग बट द केयर ऑफ अबाउट अदर्स। हर वक्त उसका दिमाग एक ही रहता है दिमाग में कि केयर केयर केयर। कॉकुलस मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड होने की वजह से फुल ऑफ केयर, द होल लाइफ ही टेक्स केयर एंड टॉक्स अबाउट द केयर्स, उतना ही करता है। अनकॉन्शियसनेस विद अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, ये जो रुब्रिक है वो इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज्ड लाइक देन अनकॉन्शियसनेस विद अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग मींस पेशेंट, हमें लगता है कि ये अनकॉन्शियस है बट द पेशेंट इज हैविंग द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। आईपीआर को लगता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ मालूम रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन आईपीआर जो रहता है ना, फॉल्स बिलीफ में रहता है कि उसको कुछ पता नहीं। मैम these are the stones that patient passed. ये 15 mm का था, इतना बड़ा था, तो पहले 16 mm का, नेक्स्ट। थैंक यू। मैम एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ सर। मैम एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। मैं एलिमेंट्स फ्रॉम केयर वेरी लव्ड वन, ये जो रूब्रिक है, इसको मैं ज्यादातर अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ केयर वहाँ ज्यादातर मैं केयरफुल ऑफ रूब्रिक लेता हूँ, और ये जो केयर का रूब्रिक है इसको मैं नहीं ले पाता हूँ कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वेरी लव्ड ओवरऑल, ये नहीं, इसमें इसको कैसे लेते हैं? जब पेशेंट को जो कंप्लेंट्स रहते हैं उसका जो ड्यूरेशन रहता है, सिंस देन व्हेन ही गॉट द कंप्लेंट्स एंड एट द सेम टाइम ही इज हैविंग द केयर और एंजाइटी अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, तो उससे वो ले सकते हैं। जो कंप्लेंट है उसकी केयर करने की वजह से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स ना फ्रॉम केयर एंड वरीज ओवरऑल लव्ड वन। किसी एक आदमी के ज्यादा सोचने के बारे में, बहुत सारे केसेस में हम लेते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ तकलीफ हो गई, तो उसका केयर करके मदर, ज्यादातर बच्चा जब बीमार रहता है तो उसके बाद में मदर बीमार हो जाती है। किसी एक बच्चे को तकलीफ हुई, एडमिट करे, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे हम एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज ओवरऑल लव्ड वन लेते हैं। ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लव्ड वन है, किसी एक आदमी की ज्यादा चिंता और काळजी केयर लेने से उसको तकलीफ होती स्टार्ट होती है। समझा सर? जी जी मैम, मतलब इसमें किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति का जो लगातार केयर करता रहता है तो उसमें ये रूब्रिक हम ले सकते हैं? नहीं, एलिमेंट्स आने के बाद में केयर तो करता रहता है, पर उसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आ गए तो वहां पे यूज कर सकते हैं। सिर्फ केयर करे तो वो नहीं लेते, सिर्फ केयर करता है तो केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स, केयरफुल ऑफ फैमिलीज अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ये सारे रूब्रिक्स हम ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद में उसको अगर एलिमेंट्स आ गए, उसको कुछ परेशानी हो गई फिजिकली या कौन से भी तकलीफ चालू होगी, तो वहां पे हम एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज ले सकते हैं। मैम ये केस में आपने जैसे कॉक्यूलस दिया उसको, यूरिन इन्फेक्शन और जो भी स्टोन था उसके लिए, तो क्या उसके साथ में ही उसका बीपी और जो शुगर हाई रह रहा था वो भी कम हो गया? एक्चुअली वो आए थे ना मेरे पास, बीपी और शुगर कम हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़े, इसके लिए तो आए थे। बट बीपी और शुगर कम होने के साथ साथ उसके पहले उसका स्टोन भी निकल गया। एंड फर्स्ट वन केस जो था ना, जो लेडी उसको जो
डॉटर्स थे, उसने मेडिसिन से स्टोन उसका निकल गया। फिर उसके बाद में आफ्टर 6 months ही केम टू मी अगेन फॉर द प्रेगनेंसी, और उसको प्रेगनेंसी हुआ और उसको मेल चाइल्ड भी हुआ में 4th LACS। बच गए, चौथी लड़की होती थी तो और प्रॉब्लम हो जाता था। नहीं, ड्यूरिंग द AMC whole 9 months she didn't get the any major complaints। जो अर्लियर LACS में उसको तकलीफ थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और प्लान LACS हुआ और उसका बेबी का वेट भी बहुत अच्छा हो गया था, उसको कुछ तकलीफ ही नहीं हुई। तो एक्चुअली ऑर्गेनिकलर्स भी बोलते थे कि उसको हाई रिस्क पेशेंट बोल के वो पहले 1 महीने से पहले एडमिट करके लिए थे। 3 सीजर है इसके लिए हाई रिस्क। हाँ, इसके लिए, बट शी डिडंट गेट एनी कंप्लेंट्स। और साइमल्टेनियसली वो हर महीने मेरे पास आती थी दिखाने के लिए, और उसके बाद में उसने वो ट्यूबेक्टमी भी कर ली 4th LACS के बाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैडम अभी आप किडनी स्पेशलिस्ट के साथ साथ अभी आप गायनेकोलॉजिस्ट भी बन गए, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट बन गए। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सिखाया सर। आपने यूरोलॉजिस्ट का पैसा खा लिया मैडम। अच्छा राजनी, आर्या, डॉक्टर आर्या वांटेड टू आस्क समथिंग। रंजीत सर बोलिए। यस सर। रंजीत बोलिए। हाँ रंजीत, आपको कुछ पूछना था? सर ये जो है ना कि जैसे स्टोन 50 mm का निकल गया, तो ये मैक्सिमम स्टोन कितना बड़ा साइज का निकलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। आप इंडिकेटेड रेमेडी दीजिए, इंशाल्लाह सब निकल सर जाएगा। कई माता जी का 48 mm का स्टोन गया है अपनी दवाई से। 48 mm स्टैग ऑन कैलकुलस, कैन यू बिलीव? इसके लिए मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। और जब मेरे माता जी की स्टोन की ट्रीटमेंट चालू किया, तब मेरी माता जी की उम्र 58 थी। सर रीनल और जीबी? रीनल स्टैग ऑन कैलकुलस। सर मैंने भी एक पेशेंट को कलकेरिया काप दी थी और उनको 28 mm का स्टोन बाहर हो गया था, और वो भी विदाउट पेन, मतलब बहुत जैसे जितना पेन होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली कुछ नहीं है। मेरे पास एक केस है सर, लेकिन मैं उसको डर से दवाई ही नहीं दिया कि 18 mm का स्टोन है, ये निकलेगा नहीं। मैंने उसको दवाई नहीं दिया, ऐसे भेज दिया उसको। सर रीनल तो निकल जाता है। सर मेरी मदर इन लॉ का सबमैंडिबुलर ग्लैंड का स्टोन निकल गया था सर, विदिन 10 hours। हाँ बेटा, जी सर, सिंगल डोज सिंगल रेमेडी। सर गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए पोटेंसी क्या देना चाहिए? वो नहीं निकलती जल्दी। 6 potency is better always, 6 or 30 is better, and you can come back to lower potency even if you go high, you can come back। एक पेशेंट था डॉक्टर पद्मा का, मुझे याद है, जो वो पेशेंट को कॉक्यूलस का ही केस था। हाँ पद्मा, she was giving high potency and after giving 6 the stone had passed, बराबर ना बेटा? हाँ सर, यस सर, यस सर। पोटेंसी मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। रिपीटेडली देनी चाहिए रीनल फॉल्ट। हम लोग ना एक बार पोटेंसी पे लेक्चर रखेंगे, मैं लूंगा, आप लोग आइए। हेलो सर, प्लीज, हेलो बहुत जरूरी है। हाँ सर, अब ये वुमेन्स वीक चल रहा है ना, जब मेंस वीक चालू हो जाएगा तब सर भाई इसके बाद में मेंस वीक ही चालू कर देना प्लीज। बाद में लेते हैं। अभी आप फिलहाल समझिएगा, कोई भी चीज आपको बाहर फेंकनी है तो आप 6 पोटेंसी, लोअर पोटेंसी। सर रिपीटेडली देनी चाहिए। रिपीटेशन, OD for 3 days, BD for 3 days is okay। कभी-कभी जरूरत पड़ा तो 1 वीक के लिए भी कुछ लोग देते हैं, पर मेरे को 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। Okay. Thank you, sir. Very nice session. Thank you, sir. Thank you very much. Padma, any questions? Beta Padma, you want to say something? हाँ सर, बोल बेटा। Thank you very much. Ashok sir,
मानसी, अनीता, प्रियंका, ऑल द टीम एंड स्पेशल थैंक्स इसलिए कि हमारा जो एम्बिशन रहता है ना होम्योपैथ के लिए कि डेली हमको 50 से ऊपर पेशेंट देखने हैं। ये एम्बिशन हर कोई डेली 50 पेशेंट देखता है तो एक पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा हम 10-15 मिनट दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, हम कंप्लीट कर नहीं पाते। माइंड मेथड भी अच्छा है और उसमें से ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है जो सर सिखाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So it is very easy with such technique to catch the remedy within 5 to 10 minutes. सर का टेक्निक सीखना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। Initially it is not going to learn by everyone, क्योंकि सर का जो थिंकिंग मेथड है उसका अंडरस्टैंडिंग उतना डेप्थ लेवल तक वहां तक जाने में हमको 1 साल लग जाता है। उसके बाद लेकिन अच्छा लगता है। इनिशियली वी आर वेरी सभी लोग ऐसे बोलते थे ना क्या समझ में आता है तुमको 5 मिनट, कुछ समझ में आता है दे देते हो नहीं, लेकिन 5 मिनट में भी हम समझते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो पेशेंट है वो बोलता है वर्बली, वो सोच समझ के बोलता है लेकिन जो जेस्चर्स रहते हैं वो दे आर इनवॉलंटरी और वो जो जेस्चर्स रहते हैं वो रियल रहते हैं। इसके लिए जेस्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट and to learn the gestures from Liaquat sir is very important. Thank you very much. Thank you sir. बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। नाही सर, that is reality. मी जे बघितलं ते सांगते मी तुम्हाला सगळ्यांना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कौन मानसी नहीं है ना? प्रणीता? मानसी मैडम, ओवर टू यू फॉर द। थैंक यू पद्मा मैडम, बहुत अच्छे केस रहे कोकुलस के, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और तू टी शर्ट में बैठा है आज? आज बिंदास, आज अरे मस्त है, दिल खुश हो गया भाई तेरे को टी शर्ट में देख के क्लिनिक में। नहीं तो यार तेरे मूंछ का एक बाल इधर उधर नहीं होता है और आज तू टी शर्ट में क्लिनिक में बैठा है, ये बात है यार। अरे यार मेरी भाभी को टेंशन आने वाला है, तू क्लिनिक में टी शर्ट में बैठा है। नहीं आता। बहुत बढ़िया। अच्छा अपन दोनों ब्लैक में आ जा शो। हाँ बहुत अच्छा केस रहा पद्मा मैडम, बहुत बहुत अच्छा केस रहा। और आप आज मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, कॉक्यूलस का सैड वाला शेड देखने को मिला। हाँ, जो बहुत कम देखने को मिलता है। वेरी नाइस। थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो एक बुलावे पे आ जाते हैं खटाक से टाइम पे, और हमारी जो टीम है जो बैकग्राउंड में काम कर रही है उन सबको धन्यवाद। पद्मा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। स्लाइड शो चलाए। थैंक यू सर। और सभी को फिर से एक निवेदन है कि यूट्यूब पर जाके जरूर केसेस देखना और अपना यूट्यूब चैनल सबको बताना, ताकि वहां पर लोग आए। हम लोग फिर यूट्यूब पर, अशोक भाई और हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सभी रेमेडीज के हम लोग वहां पर वीडियो डालें। ये हमारा सपना है। चैनल कौन सा है सर? आपको बताएंगे, उसका लिंक अभी ग्रुप पे डालते हैं। प्रणीता ग्रुप पर, मानसी मैडम लिंक डालेंगे यूट्यूब के अपने इसकी ग्रुप की। हॉरिजन का चल रहा है, हॉरिजन में भी डालेंगे, और अभी हमारे पीएचएफ का इग्नाइटेड ग्रुप का भी आने वाला है, उसका भी डालेंगे। और बाद में दोनों भी ग्रुप मर्ज हो जाने वाले, घबराइए मत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रॉम अदर मदर्स, ओके। हम दोनों भाई हैं, खाली हमारी माएँ अलग अलग हैं। सर जी आपसे बहुत दिनों से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, मैं आज पूछ लूं? बोलिए ना। आप एम्पैथी के बारे में बताते हैं ना, तो मैं आपका शुरुआती में यूट्यूब में आपको देखा था योग करते हुए आज से 4 साल पहले, तो मैं उस समय काफी इम्प्रेस हुआ था। प्लीज आप एम्पैथी के बारे में बताइए कुछ, क्योंकि जरूर बताएंगे बेटा, जरूर। आप लोग जो भी चाहते हैं सारी चीजें आप ग्रुप पे डालिए, हम वो सब चीजें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, हम लोग कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है।
Okay, Mansi, Thanksgiving to you. थँक्यू मॅडम, खूप छान सेशन झालं मॅडम. Dr. Mansi. नाही आहे डिस्कनेक्ट झाल्या. Acha, Dr. Mansi got disconnected. So formally, I have to thank my small sister, Padma, whom I call Paddy. मैं उसको लाड से प्यारी बुलाता हूँ. और ये सारे बच्चों को मैं कुछ कुछ पेट ने अलग अलग नाम दिया हूँ. Padma is very, very close to my heart. Padma and her husband is my friend, very close friend. So I'm very thankful and I'm very happy that all these children of mine are becoming so expert now that I can easily leave this world. Not now, don't worry. I'm not going to die for another 40 years. I'm not going to die for another 30 years. But I'm happy that whatever I have learned little from God, whatever little I have learned from Dr. Hanuman, from the vast ocean of his knowledge, whatever little I could understand and add more things to that in terms of gestures and understanding the rubrics. So I'm very, very happy that all these children of mine are growing so well and they are in a position to teach and convey what they understand and convey their knowledge, and at the same time they are able to heal more and more patients. And one more thing, what Dr. Padma told everyone today, that we should see at least 50 patients a day. That is our target. Okay, and that is very easily possible. Now I go to Bhiwandi first Sunday, I see almost 80-90 patients. And I go to Virar, I see almost 90-100 patients in a day. And I'm equally fresh, and with the grace of God, almost 99%, more than 99% prescriptions come to be correct. So the reason behind this is we are very clear about the rubrics, and we are very clear about what the patient is saying, how the patient is saying, and why the patient is saying. So we received the case, and I'm very, very happy about Dr. Padma and her calculus. Very beautifully she has narrated calculus. So thank you, Padma. Gratitude to you and grateful to all of the participants. And I'm thankful to Ashok because of, we started this thing. उसने बहुत पीछे लग के ये कराया हमसे. तो अशोक तो मेरी जान है. आप लोग सब जानते हैं कि मुझे दर्द हो जाए तो उसको रोना आता है, मुझे हो जाए तो उसको दर्द हो तो मेरी आंख में आंसू आते हैं. थैंक यू. माशाल्लाह से भाई है, सखे है. हम दोनों में कृष्ण सुदामा कौन है, कौन कृष्ण है, कौन सुदामा हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारी जोड़ी कृष्ण सुदामा की है. और वो हम लोग को रोल बदलते रहता है. कभी मैं कृष्ण वो सुदामा, कभी वो कृष्ण मैं सुदामा रहता हूँ. तो मैं बहुत सबका उसको आभारी नहीं बोलूंगा, उसमें तो जान है मेरी, लेकिन मैं सब लोगों का आभारी हूँ. और आज पद्मा मुझे बहुत फख्र हो रहा है, ये मेरी बहन इतना अच्छा नाम कमा रही है और इतना अच्छा काम कर रही है. थैंक यू वेरी मच. We end this session with a note of gratitude to Padma and all my female army, all the women's army. Thank you. God bless. Allah Hafiz. Thank you sir and all. Thank you sir. Thank you Padma. और हम लोग जय जगत बोलते हैं क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि ये विश्वची माझे घर है ना, तो हम लोग पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं. तो हम लोग